حماس نے اسرائیل کے اوپر ہزاروں راکٹ سے حملہ کر دیا۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی خبر، نون لیگ نے اپنا بیانیہ پھر سے تبدیل کیوں کیا اور کس طرح سے تبدیل کیا؟ آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان کو نہیں ہرا سکتے، ایسا کیوں کہا جائے گا؟ کشمیر کے بلدیاتی عوامی صحیح منو کے نمائندے جو ہیں ان کی اور ایم ایل اے کی جنگ شروع ہو گئی اور بلدیاتی نمائندے اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو چکے، اوپر سے عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا۔ آج کے گورکھ دندہ میں ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت آج صبح حماس کی طرف سے تقریباً 5,000 راکٹ جو تھے وہ داغ دیے گئے اسرائیل کے اوپر۔ حماس نے حملہ کیا، اس سے قبل بھی حملے ہوتے رہے جس کا اسرائیل جواب دیتا رہا۔ فلسطینیوں کے اوپر تو اس سے قبل بھی ظلم ہو رہا تھا، تاہم حماس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کی ذاتی کوشش ہے یا کسی اور کی کاوش شامل ہے؟ تاہم اس سے پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، خاص کر مسلمانوں کے لیے بھی ایک نیا بنجال پیدا ہوگا۔ مگر حماس کو اس حملے سے کیا حاصل ہوگا؟ اسرائیل کے اتنے بڑے نقصان کے بعد کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس میں حماس کی کس نے سپورٹ کی؟ اکیلے انہوں نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس کے اوپر مفصل بات کریں گے پوری تحقیق کر کے۔ تاہم آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا۔ پھر دیکھیے کہ نون لیگ جو ہے اس نے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ صرف ایک یہ ہے کہ بیانیہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بکتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں ہوگا تو یہ بکے گا نہیں۔ پہلے نواز شریف صاحب نے 18 ستمبر کو پچھلے مہینے میں کہا تھا کہ ہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جنہوں نے ہماری حکومتیں ختم کی، جنہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کیا، جنہوں نے میاں صاحب کو نائل کیا، جنہوں نے عمران خان کو اقتدار کے اندر لایا، اور پھر انہی باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، ساری چیزیں ہوئی۔ پھر ان باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے بدلے میں ان کو حکومت دی جو کہ 16 ماہ چلی۔ پوری پی ڈی ایم نے ان مفادات سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا، اپنے مفادات پورے کیے، اپنے کیسز ختم کروائے۔ الگ بات ہے وہ بعد میں بحال ہو گئے، مگر جو سٹیٹمنٹ دی تھی میاں صاحب نے اس کو پھر میاں صاحب اس کے اوپر خاموش ہو گئے، پھر بولے نہیں۔ پھر باقیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی یہ وقت نہیں ہے، ابھی مہنگائی ہے، معاشی حالت بہتر کرنی ہے، پاکستان کے مین ایشوز اور ہیں۔ جب ایسے ہوا اور پھر شہباز شریف صاحب کو جب لاہور میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے روک کر برا بلا کہا، گالیاں دی، جو کہ غلط بات تھی، اور اس کے بعد نون لیگ کو سمجھ آئی کہ جب تک عمران خان کی طرح یا کسی اور کی طرح ہم فوج اور فوج کے ذمہ داران جو ہیں یعنی کہ چند لوگ جنہوں نے ان کی حکومت ختم کی تھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ لیکن یہ بھی عوام کو سمجھ ہے کہ جن دو کے خلاف یہ بول رہے ہیں واقعی انہوں نے ان کی حکومت ختم کی تھی، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن جو اس بار رجیم چینج ہوا، جو اب بھی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے سیاست کے اندر، وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو اب بھی نہیں چاہتی کہ میاں صاحب واپس آئیں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس نگران سیٹ اپ کو لے کے آئی، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اسی نگران سیٹ اپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں جو آپ کی مخالف بھی ہے، آپ کی حمایتی بھی ہے، آپ کے ساتھ وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ان کی مرضی سے جو نون لیگ ہے، ان کی جتنی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ تو پی ٹی وی کے اوپر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ جی دیکھیے، جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہم جنہوں نے ہماری حکومت ختم کی تھی، اچھی چلتی حکومت کو ختم کیا تھا، میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا ان کا احتساب کریں گے، یعنی کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کا احتساب تب ہم کریں گے جب ہم عوام کے پاس جائیں گے، عوام ہمیں ووٹ دیں گے، ہم جیت جائیں گے، ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کے بعد ہم احتساب کریں گے۔ وہ بھائی جان معیشت کی بات کرو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ بیانیہ بدلا کیسے، کہ پہلے کہتے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے، اب کہہ رہے ہیں ہم اقتدار میں آئیں گے تو پھر احتساب کریں گے۔ نہ وہ پہلے احتساب کر سکتے تھے، نہ وہ اقتدار میں آئیں گے، اگر آ بھی جائیں تو پھر بھی احتساب نہیں کر سکتے، اگر آ بھی گئے تو ان کو لولی لنگڑی حکومت دی جائے گی۔ پہلی تو بات ہے، بڑے دور کی بات ہے کب الیکشن ہوں گے اور کیا چیزیں ہوں گی، تاہم نون لیگ نے یہ بیانیہ بدلا ہے پھر سے اور کہا ہے کہ اب اچھے حالات نہیں ہیں، اچھے حالات جب آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ احتساب کریں گے۔ کس کا؟
बाजवा साहब का, फैज़ हमीद साहब का, या बाकी लोग जो जस्टिस, चीफ जस्टिस थे और बाकी जो जजेस थे, उनका एहतसाब किया जाएगा। नून लीग को समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, कहाँ इख्तिताम करें, किस तरफ जाएं और कैसे हो। आप इमरान खान को ऐसे नहीं हरा सकते। आप देखिए कि जावेद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान कुछ इस तरह का है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए है। वो जावेद चौधरी साहब की वजह से नहीं, इस बयान को वजह बना के सोचा ये देखने और सुनने वालों को हम बता सकें। अब इमरान खान क्या सियासत करेंगे। अब जिस शख्स का बयान सामने आने लगा है, ये इमरान खान को जड़ों से हिला देगा। अच्छा, ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं ये तो आपको पता ही है ना, जावेद चौधरी। इमरान खान को जड़ों से हिला देने वाला बयान जल्द आ रहा है, ये पेशन गोई है जावेद चौधरी साहब की। तो अब सुन लीजिए कि इमरान खान को आप एक काम करें, ये जो आज हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, ये इमरान खान के ऊपर FIR काटें कि ये इसने करवाया है। इससे कबल आपने इमरान खान के ऊपर हमला किया, 7 बच्चियां बल्ली चढ़ाने की बात की, जादू टूने की बात की, इद्दत पूरी होने ना होने की बात की, 2 निकाह नामे लेके आए, उनकी नाजायज़ बेटी के केस के ऊपर आपने बात की, तोशा खाना में उनको चोर बनाया, कोयटा में कत्ल के अंदर उनके ऊपर कत्ल की FIR हुई, दहशतगर्द उनको कहा, बगावत का मुकदमा उनके ऊपर ठहरा, मुल्क का गद्दार आपने उनको कहा। फिर देखिए किस किस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने वादा माफ़ गवाह बनाना था, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो खान साहब। फिर उस्मान डार का इंटरव्यू आ गया, सदाकत अब्बासी घर पहुंच गया, रोया चीखा चलाया, लेकिन कुछ हुआ। डॉन न्यूज़ ने इंटरव्यू नशर नहीं किया। वो कौन सा इल्ज़ाम है जो अब तक इमरान खान के ऊपर नहीं लगा? प्रॉपर्टी चोर, गड़ी चोर, फलां चोर, सारी चीज़ें। तो कोई कमी आई इमरान खान के अंदर? उसकी कोई पॉपुलैरिटी कम हुई? आप कहते थे ये नशा करता है, एक दिन जेल में नहीं गुजारेगा। आज 1.5 महीने से ज़ायद वक्त हो चुका है, जेल में है। आप जितनी मर्जी कोशिशें, काविशें, सारा कुछ कर लीजिए, ये इमरान खान चूँकि न्याजी है, पठानुल नस्ल है, तो ये पंजाबियों से और सिंधियों से थोड़े मुख्तलिफ हुआ करते हैं। तो देखते हैं अब नया बयान कौन सा आएगा जो इमरान खान की जड़ें हिला के रख देगा। पहले तो ऑन कैमरा साइफर की बहस तो करवा लीजिए, ये 27-28 लोगों की गवाही तो दे दीजिए। और भाई लोगों, ये 2023 है, ये 21वीं सदी है, ये जदीद दौर है। आप इसके अंदर ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिसके तहत वो भट्टो साहब को रात को फांसी दे दी, कत्ल के मुकदमे में वो 10 साल पुराना केस, चीज़ें हो गई थी, नहीं संभाल पाओगे। तब तो मैशत भी अच्छी थी, तब तो ये इंटरनेट भी नहीं था, तब तो सिर्फ एक जो है वो PTV हुआ करता था और चंद अखबारात होते थे जो किसी के कंट्रोल में थे। तो लिहाजा इस दौर के अंदर ये हिला देंगी खबरें, जड़ें उखाड़ के रख देंगी, फलां चीज़ हो जाएगी, कर लें जितनी हद तक चीज़ें करनी है। अब तक आपने क्या नहीं किया उसको कमज़ोर करने के लिए, मगर पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो ताहाल इमरान खान के साथ हैं और लग ये रहा है कि वो आइंदा भी इमरान खान के साथ ही रहेंगे। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप जिंदा रहे फिर भी नहीं कम हो सकती। दुनिया से तो उसी वक्त जाएगा जब अल्लाह चाहेगा। तो वो चला भी गया तो फिर भी लोग उसको याद रखेंगे। आप कर लें मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील, ऐसे कभी हुआ नहीं है। लोग जान दे देते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत को नफ़रत में और नफ़रत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। कोई ऐसी चिब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये खामोश करवा दें सहाफ़ियों को। ये जितना जुल्म आप कर रहे हैं, जूं जूं करते जाएंगे आपके ख़िलाफ़ नफ़रत, और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनसे लोगों की मोहब्बत बढ़ जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 11 माह कबल, और उन बल्दियाती इंतखाबात के बाद आज तक जो है बजट में उनको वो बजट नहीं दिया गया जो कि लोकल निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए चीज़ें होती हैं, तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न तक। अब बरतानिया की मिसाल देना तो बड़ा मायूब लगता है, कहाँ तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा और कहाँ ग्रेट ब्रिटेन जिसकी एक लंबी तवील हिस्ट्री है। मगर लोकल जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो लोकल निज़ाम हुकूमत होता है, असल में ये उसी का काम है टूटी नलकी और सारी चीज़ें करनी, और फिर गले में हार माला और तख्तियाँ भी नहीं लगाते जो अच्छे जमहूरी मुल्क होते हैं, चूँकि ये उनका फ़र्ज़ होता है। अब एक दरख्वास्त दायर की गई थी कुछ बल्दियाती अवामी नुमाइंदों की तरफ से जो जिनका तल्लक बाग से है, तो उसकी रोशनी में हाई कोर्ट ने, अदालत ने फ़ैसला दिया है, और फिर मज़ीद मंगल के रोज़ जो है वो उसके ऊपर हतमी फ़ैसला आएगा। कोई बेंच बनाया जा रहा है कि ये जो बजट आप
MLA को देना चाह रहे हैं, ये बजट दरअसल जो बल्दियाती अवामी लोकल निज़ाम हुकूमत है, जो नुमाइंदे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, ये उनको मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसको तो MLA जो हैं उनको अगर बजट ना मिला तो ये तो उनके हाथ पांव काट के किसी और को देने की बात हो रही है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। फिर दबे लफ्ज़ों में कहीं यकीनन मैं मानता नहीं हूँ ये बात कही होगी चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कि अगर जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को ही बजट दे दिया तो फिर हम क्या रेडी लगा के बैठेंगे। चूँकि हम उनको बेहतर समझते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो इसी निज़ाम का हिस्सा बन गए तो फिर जो रही सही कसर थी अनवारुल हक साहब की वो भी निकल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब इख्तियार आता है तो पता चलता है इंसान क्या होता है। ये जुमला अगर याद रखा जाए तो फिर ये भी याद रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपकी बातें, आपके काम, आपके कारनामे अच्छे और बुरे हों वही याद रहेंगे। तो अब देखना ये है कि ये MLA और लोकल अवामी नुमाइंदों की जो जंग कहूँ, इख्तियारात की जंग कहूँ, जो हक लेने की ये बात कर रहे हैं, क्या इनको हक मिलेगा कि आज़ाद कश्मीर की जो अदालतें हैं वो इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं, जो कि हकीकत है कि इन अवामी नुमाइंदों को हक मिलना चाहिए, उन्हीं को बजट मिलना चाहिए, वो काम काज करें। ये कौन सा निज़ाम है, आपको उस दिन भी बताया था, फिर बताता हूँ। एक MLA को, नॉट मिनिस्टर, उससे 125 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो मिलती हैं, और 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर यकीनन 1 करोड़ से ज़ायद का 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चा आता है। और इस तनासब से 25 किलोमीटर सड़कें हों तो उससे अरबों रुपए का बजट 5 साला दौरे हुकूमत में मिलता है। लेकिन ये सड़कें आपको कागजात में नज़र आएंगी, कहीं नज़र नहीं आएंगी। ये बिजनेस है। अब ये जो MLA हैं ये कोई किसी पे एहसान नहीं करते, ये ठेकेदार उसको ठेका देते हैं जो इनके घर की कोठी भी बनाता है, उसी करप्शन के अंदर से उसके घर का नक्शा बनता है, उसको उसमें से कमीशन मिलता है, अपना हिस्सा अलग से रखते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े कम पैसे लगते हैं। कभी आपको वक्त मिले किसी के ऊपर गौर व फिक्र करें, आप सिर्फ लोकल तहसील लेवल के ऊपर महकमा लोकल गवर्नमेंट से रिकॉर्ड निकलवा के देखें कि 5 सालों में किस किस के दौरे हुकूमत में कितने नलके की स्कीमें दी गई, कितनी सड़कें थी, क्या था, रिकॉर्ड में सब ओके है। उसमें से 10% आपको उस के ऊपर चीज़ें नज़र आएंगी। जितनी करप्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर होती है, मैं दावे से कह सकता हूँ, फ़ख्र से नहीं, इतनी यकीन जानिए कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। आबादी, रकबे और बजट के एतबार से मैं फिर रिपीट करता हूँ, जितनी करप्शन आज़ाद कश्मीर में है इतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। और ये वाहिद दुनिया का मुल्क इसलिए कहूँगा कि पूरी रियासत का एक ढांचा है, लेकिन यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है। आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। हाँ, एक साहब हैं जिनको वो भी FIA ने पकड़ा था, 77 अरब रुपए की करप्शन की थी उन्होंने, जिन मसूब का नाम ECL में भी आया था, जिनको अरेस्ट भी किया गया, जिनका अब भी केस दुनिया की बड़ी अदालतों के अंदर भी डिस्कस होगा। तो कहने का मतलब कि ये लोग जो हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं बल्कि अवाम के ऊपर बोझ हैं, जो उनका हक उनको नहीं देना चाह रहे। तो देखते हैं ये जो हज़ारों की तादाद में बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो लोकल इंतखाबात जीते थे गवर्नमेंट के, वो अपना हक ले सकेंगे या नहीं लेंगे, ये बात किस हद तक जाएगी और हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।